Angle between the curves is the first content. For sure, we'll be able to complete it, right? And one more thing, like length of tangent, subtangent, normal, subnormal, etc. This is what has been left. वो हम लोग को करना है ना? So before that, I just want to ask you one thing. Tell me, you have done that number of normals can be drawn to a parabola is maximum is 3, then condition on 2, किया condition इंडिया on पाकिस्तान 1, Yes, sir. and minimum one normal can be drawn. That is a fact actually for the parabola, isn't it? Yes, sir. yes sir Okay, so do you remember that equation of normal at the point M? I mean, if I take a parabola am square comma 2am, in that condition, the equation of normal is coming out to be y equal to mx minus something something, right? Yes, sir. हाँ sir. And then you find a locus of a point where from you are drawing two normals or three normals. If we are taking the condition of three normals, then we get a cubic equation in terms of m, and we get three equations in m actually. Summation m1 निकलता था, फिर कुछ और भी था, summation m1 m2 भी निकलता था, and what else? Product m1 m2 m3, है ना guys? हाँ sir. उसके बिहाफ पे फिर हम लोग कुछ किसी एक m1 का वैल्यू निकाल के h कोमा k के टर्म्स में वापस पैराबोला की वही थर्ड डिग्री इक्वेशन में रखते थे, तो हमें एक h और k में एक लोकस आता था, बराबर? बहुत सारे क्वेश्चन है एक्चुअली इस तरह के बुकलेट में। यस सर। हाँ sir. है ना? तो लाइक ध्यान दो जरा, वो पैराबोला का ही क्वेश्चन है, उसको मैंने कर्व से चेंज किया। y इज गुड मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह में कर्व में मानो y स्क्वायर इक्वल टू x, वैसा कुछ कर्व लेता हूं। ऑलराइट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, वो एक छूट गया था क्वेश्चन मुझे यार, आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज एक बार अगर ये कर लिया है। दिस इज द कर्व, शेप इज नॉट एग्जैक्ट व्हाट आई हैव मेड हियर। द कर्व इज x इज इक्वल to t square and y is equal to tq। कर लिया है sir. ये कर लिया है ना? yes और sir परपेंडिकुलर हम लोग डालते थे जैसे, याद है? हाँ, yes sir. और इसका लोकस हम लोगों ने निकाला था। चलो ये वैरायटी हो गया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, मॉड a प्लस मॉड b का कुछ वैल्यू निकाला था, याद है? नोट कोड से पढ़ा करो यार, ये एकदम से बर्डन आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये निकाल जबरदस्त वाला, तो नोट्स पढ़ के और जितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, जो होमवर्क मिलता जा रहा है, वो टाइमली कंप्लीट करो बच्चों। ऑलराइट, तो फिर इस कंडीशन में हमारा कंटेंट 1 तो पूरा हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन द कर्व्स। एंगल बिटवीन द कर्व्स, guys, it's very easy part, like you know, if two curves are intersecting, then only angles possible. So when the curves are intersecting, let it be C1. When the curves are intersecting, there is an intersection point always, which you need to find in every question. Okay, now we'll be drawing tangent here. I mean, angle between two curves implies angle between the tangents at the point of intersection. Am I right? Yes sir. Yes sir. And how do you find the angle between the tangents here? This angle tan theta is nothing but, generally you guys, we take theta as acute if not given in the question. Tan theta is equal to m1 minus mod m1 minus m2 divided by 1 plus m1 divided by 1 plus m1, where m1 is nothing but dy by dx of x1 comma y1, I mean at x1 y1 for curve C1, and m2 is dy by dx. This all you guys have done actually at x1 y1, same point for curve C.
Just write the values of m1, m2, and you get the curve, get the angle between the curves, which is not difficult, I guess. Next. सर ये तो खाली हमने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा दिया एकदम छोटी स्केल पर. So definition of angle between the curves is equal to, I'll write angle between the curves is same as, ये तुम लोगों ने किया है, मतलब पूरे कॉनिक में करता है, as angle between the tangents. Tangents क्या लाइन ही तो होती है. यस सर. At the point of intersection. At the point of intersection. Guys, tell me. हाँ सर. First, lines के बीच का angle तो हो गया, but at this point, that is important. Right, guys. If m1 is equal to m2, I repeat, at this condition, guys, m1 means x1 y1 पे ये दोनों से. If m1 is equal to m2, can you say that the curves touch each other? Yeah. 0 degree. 0 degrees. If m1 m2 are equal, then curves touch each other. In that condition, x1 y1 and x2 y2 satisfying the same curve. We get 3 equations. We have done it last time. The curves Yes, sir. touch each other, right? But guys, remember one thing. When two curves touch each other, m1 is equal to m2 जो आएगा ना, उसके साथ में ये कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है, ये सर्कल्स यहाँ पे tangents are parallel. This m1 is equal to m2, but the points are different. Remember, this m1 m2 is nothing like this one. This m1 is at x1 y1. This also at x1 y1. So this is not the case. This x1 y1 is not common to these. So the two curves touch each other. The condition is not m1 equal to m2. Two curves touch each other. The condition is m1 is equal to m2 at point of intersection. Guys, have you understood this? Yeah. Yes. Yes, sir. That is important. Okay. Second part, guys. What is the definition of orthogonal curves? Curves that cut at 90 degrees. If two curves cut at theta equal to pi by हाँ. m1 m2 is equal to -1. If two curves cut each other at 90 degrees, they are said to be orthogonal curves. Guys, just remember this definition. If two curves cut at an angle alpha at all the intersection points, all the intersection points, curves are said to be isogonal curves. बच्चों, if alpha is 90, orthogonal curves. Guys, remember one thing. Y square is equal to 4x and x square is equal to 4y are not orthogonal curves. But they are orthogonal at origin. We can easily identify this. ये angle तो 90 होगा. Tangent for this parabola, tangent for this parabola is x-axis and tangent for this parabola is y-axis. Angle between the intersection points is 90. Orthogonal at origin is correct, but the curves are not orthogonal. As the definition says, at all the intersection points, the angle should be same. It shouldn't be different actually, right? It's a major difference in the definition, like at one or two places you will find.
ऑर्थोगोनल कर्व्स एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑर्थोगोनल कर्व्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट। बच्चों अगर लिखा हुआ आया कहीं क्वेश्चन में कि x square y x square is equal to 4y and y square is equal to 4x are orthogonal curves, then it will be a wrong statement. Okay, at origin they are orthogonal. So guys, अब ये तो एक लंबी कहानी बन जाएगी एग्जाम्स में, पता है, ऐसा लगता है बड़ा ऑर्डिनरी जिसका क्वेश्चन है, लेकिन गाइस थोड़ा सोचो वो तुम लोग को कहाँ फंसाएगा इसमें जाके। He'll give you two dirty curves whose intersection point is the theory of equations. सोचो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता लग जाएगा बच्चों, ये वाला तो पता लग ही जाएगा, ये तो 0,0 आ गया और ये भी पता लग जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पता है तो m1 m2 पता लग गया तो tan थीटा पता लगेगा ही। लेकिन बच्चों थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन दे देगा और वहां इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद वेरीफाई करना है कि सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे 90 डिग्री आ रहा है, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या करना है, कोई आइडिया? पहले तो आई थिंक डिस्क्रिमिनेंट ही लगा लेंगे। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो लगाओगे, क्यूबिक में भी डिस्क्रिमिनेंट तो लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर एक्सपोनेंशियल अटैच करके दे देगा, 10x is equal to e to the power x plus 7 by तो खत्म हो जाएगा फिर। हाँ ln x। हाँ सर। तो दोनों तरफ ग्राफ बना करके देखना पड़ेगा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो गाइस उस कंडीशन में क्या करोगे, वो कंडीशन में क्या, देखो एक चीज समझो, तुम मानो कुछ क्वेश्चंस में, I'm not talking about all the questions, remember, because the manipulation part is different, question wise it changes actually, right? मैथमेटिक्स का एक ड्रॉबैक यही है, देखा जाए आप लोगों ने इतने पेपर्स दिए, आपको पता लगा होगा यार इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर पाते एंड में तो आंसर नहीं आता, दैट्स इट, फंस गए। और वो प्रैक्टिस से ही आता है, सिर्फ प्रैक्टिस से, अच्छी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस खुद करोगे उससे आता है, राइट? सो बच्चों उसमें क्या है, मानो तुम लोगों ने tan थीटा निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, सब लोग ध्यान देना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, tan थीटा निकाला इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यहां इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x एंड y के टर्म्स में निकाल दिया बच्चों। अब tan थीटा यहां पे, ये जो बॉक्स आ गया बच्चों, जहां पे मेरा ये हाथ है अभी, यहां पे x और y के टर्म्स में tan थीटा आ गया, राइट? C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, यानी x और y के टर्म्स में एक रिलेशन C1 है, x और y के टर्म्स में एक रिलेशन C2 है, और x और y के टर्म्स में तीसरा रिलेशन यहां जहां मेरा हाथ है वो है। बच्चों ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, बैच 2 का नहीं है, ये फ्लैगशिप पे ही है। हाँ, क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों किया होगा किसी ने? मीर अपने बैच में है क्या भाई? हाँ सर। हाँ सर अपने बैच का ही। अच्छा, हाँ, तो बच्चों एक बात बताओ, ऐसा कभी कभी मतलब आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट से होंगे ना, गंदे से होंगे, जिसमें तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में डिफिकल्टी आ रही है बच्चों, यहाँ पे m1 - m2 और 1 + m1 m2 ये xy की टर्म्स में आ रहा है ना, c1 और c2 वाला xy और ये वाला xy, बच्चों इससे डेफिनेटली अगर एंगल बन रहा है तो यहाँ xy को गायब होना ही चाहिए ना, तो फिक्स एंगल बनेगा ना, सही है सर? मैं फिर बोलता हूँ, m1 in terms of xy, m2 in terms of x and y, यहाँ भी x और y की टर्म्स में, ये xy की टर्म्स में कर्व हो गया और ये xy टर्म्स, कितने रिलेशन मिल गए? 3 रिलेशन मिल गए ना। हाँ सर। इन आपने पॉइंट एक बार रिपीट करो ना। इन 3 रिलेशंस में से ये दोनों रिलेशन की हेल्प से, c1 c2 की हेल्प से यहाँ वाले xy को उड़ाना है, वो मैनिपुलेशन। अगर बच्चों ये उड़ गया, मतलब मानो किसी क्वेश्चन में उड़ गया, एंगल आ गया, इसका मतलब वो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे एक ही एंगल आएगा, सही है सर? अरे बाबा Yes, sir. x y से इंडिपेंडेंट हो गया ना, x y तो कट ही गया ना उसमें। Yes, sir. बच्चों डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सर हां बोलो। आप वो कॉम्प्लिकेटेड कर्व को टैकल कैसे करेंगे वो एक और बार समझा सकते हो प्लीज? मैं वापस करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड कर्व को मैं टैकल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ जो tan थीटा आ रहा है एक्स वाई की टर्म्स में, अगर एक्स वाई की टर्म्स में यहाँ जो दोनों कर्व्स है, मतलब ये जो tan थीटा आ रहा है, अगर एक्स वाई की टर्म्स में दोनों जो कर्व्स है उनकी हेल्प लेते हुए यहाँ वाले एक्स वाई को मैं एलिमिनेट कर दूं और ये कांस्टेंट आ जाए, तो बताओ
tan थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y हो गया ना, हाँ यानी थीटा जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा, राइट, वहां पे सेम हो गया ना, सही है सर। या तो हाँ फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। तो जो ऑर्थोगोनल कर्व्स का जो नंबर आएगा ना किसी एक आधे क्वेश्चन में, आउट ऑफ, मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ 10 एक क्वेश्चन, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भारी पड़ता है। उस कंडीशन में अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल रहा है ना, तो बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हुए यहाँ पे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, यहाँ पे m1 m2 xy की टर्म्स में निकाल के xy की टर्म्स को यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन से। अदरवाइज इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश ही करनी चाहिए सारे क्वेश्चंस में। जस्ट रिमेंबर दैट, राइट? So guys, tell me one thing. What is the condition of orthogonality on the circle? 2 times g1 g2 वही वाली 2 of g1 g2 plus G1, f1 वही वाली G2 f2 plus condition। हाँ, तो रटी हुई है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, रटी हुई है condition। कोई कंडीशन और किसी कॉनिक पे भी है क्या, मतलब अदर देन सर्कल्स? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी कुछ POSL में थी a plus b equal to c। पीओएसएल छोड़ दो, वो अलग ही कहानी हो गया उसका, राइट? लेकिन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी ऑर्थोगोनैलिटी का कुछ कंडीशंस किया है क्या, लोगों ने याद है क्या? किया तो है, किया तो है। सर तो यही में पूछा था। एक सर वो question- नॉर्मल से नहीं नहीं, चलो चलो ठीक है उसका। कंडीशन रटे नहीं, ऐसे कोई हाँ, नहीं, रट कंडीशन नहीं नहीं सकते। condition नहीं किया। मैंने पूछा भी नहीं कि रटा है कि नहीं, मैंने पूछा कि इस हाँ। तरह का क्वेश्चन एलिप्स हाइपरबोला में किया है कि नहीं किया, क्योंकि वहां पे इंटरसेक्शन हाँ, पॉइंट हाँ। हम लोग निकालते नहीं थे। और हाँ हाँ नहीं सर किया है, क्वेश्चन किया है बट हाँ क्वेश्चन किया है। हाँ, वो रटा कंडीशन नहीं किसको था। याद रहेगी, ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन किसी को याद थोड़ी रहेगा। मुझे एक बार फोटो ले लो इसका, फिर तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चाइना है क्या? सर ले लिया सर। What is the angle between y equal to sin x and y is equal to cos x in first quadrant? मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहता है एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन, तो y equal to sin x और cos x ये आइसोगोनल होती है क्या कर्व? पता करो, sin x and y is equal to cos x in first quadrant। मतलब मैंने तो तुम्हें यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। फटाफट से निकाल दो उसको, मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। y equal to x square and 6y is equal to 7 minus x2 at a, मतलब a, एक ऐसा पॉइंट हो गया जो बोल रहा है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए, उस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, मतलब हम लोग को एंगल चाहिए, बाकी और जगह में एंगल नहीं चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, राइट? नेक्स्ट हो गया बच्चों 2y square is equal to x cube and y square is equal to 32x। बाद वाला इक्वेशन सर एट बस ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब देखो हर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब सारे पॉइंट्स पे निकलना पड़ेगा ना। ओके ओके सर। तो मेरा सिली डाउट है, आपने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था m1 is equal to dy by dx into c1, तो उसमें स्लोप निकाल के फिर c1 से मल्टीप्लाई करना ना हो। अरे c1 से मल्टीप्लाई नहीं, c1 मतलब फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कर
अच्छा बस हाँ बस 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 वही। फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट कर और उसमें x1 y1 जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो डाल दे, दैट्स इट। सर वो 8 0, 0 या फिर 1 है? एट a को y। ओके सर। सर ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है ना? नहीं, बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अदरवाइज ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है विदाउट दैट। हाँ सर, सॉरी सर। वैसे एग्जाम्स में लिख के देता है बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस सर। ये प्राइम कंडीशन। अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क में आप कर लेना एक बार, फिर नेक्स्ट टाइम इसका आंसर मैं पूछूंगा। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज हो ही जाएगा। y is equal to mod x square minus 1। तो इसका ग्राफ बनाना फिर देखना इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे किस तरह के निकल के आ रहे हैं, एंड y is equal to mod x square minus 3। and the last one is x square minus y square is equal to a square and x square plus y square is equal to root 2a square. Root 2a square आएगा कि 2a square। सर फोर्थ क्वेश्चन में जीआईएस है या ब्रैकेट है? GIF बॉक्स है। अच्छा क्या पहला आंसर बताओ ना एक बार, किसी को नहीं आया तो पूछना फिर। पहला आंसर क्या आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 2√2 आ रहा है। सर एक कोई क्वेश्चन कर दो ना सर। हाँ प्लीज। एक बताता हूँ मैं कोई अच्छा क्वेश्चन बताने के उसमें था। तो पहला वाला ही कर दो ना, इजी है तो फर्क नहीं पड़ने वाला था, अप्रोच जानना है। हाँ सर, एक कोई ऐसे- इजी वाला ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हर एक क्वेश्चन का पहला स्टेप। तो sin x इज इक्वल टू cos x, x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा n pi plus pi by 4। pi by 4 ही आएगा ना बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना, हाँ सर। राइट, और एंगल्स नहीं लेंगे, बस pi by 4 लेंगे। अभी dy by dx फॉर फर्स्ट कर्व c1 का मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा at pi by 4, ये हो जाएगा cos x at x equal to pi by 4। कितना हो गया, है ना। Similarly, dy by dx for second curve c2 at pi by 4 कितना हो जाएगा, minus sin x at pi by 4 minus 1 by 4। तो बच्चों tan थीटा कितना आ गया बताओ। tan थीटा is equal to m1 minus m2 means 1 by root 2 plus 1 by 2 upon 1 minus 1 प्लस m1 m2 सारा बच्चों माइनस हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई 1 माइनस हाफ, ये मान इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, 2 by root 2 ये हो गया और 1 by 2 ये हो गया। तो ये कैलकुलेट क्या हो गया, mod 2। दैट्स tan थीटा इज 2 root 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा अब ये किसी और क्वाड्रेंट में अगर जाओगे, राइट, तो और बहुत सारे एंगल्स बनेंगे ना, ये सारे एंगल सही आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चेक करना एक अलग इशू है, वो हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं और क्वेश्चन में चेक कर लेंगे ना। ठीक है, समझ में आया हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स। फर्स्ट फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। इफ
you are able to find. Tan theta is equal to 2. Which question? Fourth. No, हाँ, दो बनेंगे ना एंगल, एक अक्यूट बनेगा, एक दूसरी साइड में भी बनेगा ना एंगल। बच्चों किसी को डाउट है क्या इसमें? -2. हाँ, शायद हाफ आ रहा है यार, मुझे याद नहीं है, वेट करना पर मॉड आ जाएगा ना। तो क्या हाँ, तो सही सही है, सही तेरा आंसर सही। एक बार इसका फोटो लोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन इरेज कर पाऊंगा। ले लिया सर। तो सेकंड वाले का आंसर ए में देना है क्या? अब नहीं बेटा, ए फिक्स आ जाता है एक्चुअली। पॉइंट ए कॉमा ए निकला क्या बच्चों? 1,1. थर्ड का आंसर भेज दिया। नहीं, सेकंड का आंसर देखो ना, सेकंड का आंसर इंटरसेक्शन पॉइंट का 5/2 आ निकल रहा रहा है। है। 5/2। तो 1,1 निकला कि नहीं निकला, बस वो दैट्स Yes, व्हाट sir, Yes, yes, sir. sir. हाँ, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट ए को और भी पॉइंट्स निकल रहे होंगे, लेकिन अब अपने को इससे मतलब है ना। तो ए कॉमा ए इज नथिंग बट 1,1। किसी को डाउट है क्या निकालने तुम क्या है? हाँ, एक बार बता दो। तो देख y इक्वल टू x स्क्वायर यहाँ पे डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सुंदर ही निपटाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, यहाँ y की वैल्यू डाल दी 7 माइनस x क्यूब। दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1। अब a कोमा a मतलब ये सेम पॉइंट x इज इक्वल टू और y इक्वल टू 0 माइनस 7। क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का रूट तो ट्रिवियल निकलेगा बच्चों, बिल्कुल एकदम दिख रहा है। ये देखो ध्यान से और ये देखो ध्यान से, पता लग रहा है एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। 1 हाँ। x is equal to 1 is the solution. X equal to 1 will give you y equal to 1. Y equal to x is equal to 1 will give you y equal to 1 at both the places. Y equal to, right? समझो a कोमा a हो गया 1 कोमा 1। बस अब क्या है, इसका dy by dx 1 कोमा 1 पे निकालो, इसका dy by dx 1 कोमा 1 पे निकालो और फॉर्मूले में डाल दो। ऐसे सारे क्वेश्चन में यही करते हैं ना। अब कोई किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि यार 1 कोमा 1 के अलावा यहाँ पे तो क्यूबिक बन रहा है ना ये। मान लो 2 पॉइंट्स और निकले तो उसका क्या करेंगे, उस पे एंगल हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि उसने मेंशन किया है इधर कि इस पॉइंट पे ही निकालना है। जो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं उसी पॉइंट पे निकालना है। हाँ, बाकी बचे हुए इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा है, क्वाड्रेटिक आएगा ना बच्चों, x - 1 से डिवाइड करने पे। हाँ, क्वाड्रेटिक है। सर उसके अगर उसका नॉन ड्यूअल डिस्क्रिमिनेंट रूट्स 0 आ आते रहा हैं। है तो फिर तीनों रूट्स इक्वल हो गए। तीनों रूट्स इक्वल नहीं हुए, सॉरी, दो एक रूट तो 1,1 हो गया, लेकिन बाकी बचा हुआ एक रूट और कॉमन आ जाएगा। हाँ, और कॉमन आता है। और कॉमन आ जाएगा, बट वो आ नहीं रहा है एक्चुअली, मैंने लिखा नहीं है इधर में, वो कॉमन आ नहीं रहा है। मतलब दो रूट्स अलग अलग ही आएंगे मेरे हिसाब से, या फिर रूट्स नहीं आएंगे, देख लेना। सर दोनों नॉन ड्यूअल आते हैं क्वाड्रेटिक के बचे हुए। हाँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं है, बट इक्वल रूट्स में x इक्वल टू 1 वाला ही पार्ट एक्चुअली आता है। 4√2 परफेक्ट। हाँ राइट है सर, राइट।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट रह गया है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल इरेज दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें तो मतलब पिक्चर में तो आ ही गया है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया है इसका। कैन आई इरेज दिस? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये वाले दोनों कर्व्स ओरिजिन से पास हो रहे हैं क्या? अरे ओरिजिन का मतलब 0,0 हो गया तो वो तो नहीं हो रहा है, दिख ही रहा है ना। फर्स्ट वाला कर रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला कर फर्स्ट वाला पास फर्स्ट वाला हाँ फर्स्ट ये देखो। अब बच्चों एक वो बताओ, ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो वहां तो एंगल तो नहीं निकला ना, एंगल बिटवीन द कर्व्स का मतलब हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, वरना एंगल नहीं निकाल सकते, बराबर ना? बच्चों लेकिन हाँ बोलो वेदांत वो है। सर वो क्वाड्रेटिक का वो रूट सा डिस्कशन कर रहे थे, वो मेरे को नहीं समझा। अरे बाबा x देखो, इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, हाँ। इससे यस होगा। यस सर। ओ जब डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा? क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बच जाएगा। क्वाड्रेटिक बचेगा। क्वाड्रेटिक के या तो इक्वल रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट वाले हो या फिर नॉन रियल रूट्स होंगे। हाँ बस वो हाँ। देख ले एक बार, अगर इक्वल रूट्स की कंडीशन आ जाती है तो दो रूट्स और a, a और बन जाएगा ना, एक और मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, तो वो फिर करके एक और- देखना पड़ेगा। हाँ हाँ वो चेक करना पड़ेगा। ओ ठीक है हाँ सर। गाइस, याद करो लेक्चर 1 वो वाला था जिसमें अपन लोगों ने मिसलेनियस कुछ किया था, टाइम पास जैसा, याद आ रहा है? हाँ सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट हाँ, वन पॉइंट, हाँ। ये सब हम लोग कर रहे थे, याद आ रहा है? वो मतलब मिसलेनियस ऐसे टाइम पास लेक्चर कर दिया था उस दिन कि चलो सारी चीजें एक साथ ही आज बता देते हैं। बच्चों एक बात बताओ, ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर तुम चेक करोगे, देयर आर 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। एक पॉइंट तो पता लग रहा है 0,0 और प्लस 16 8 अगर ये तो तुम समझ सकते हो बच्चों, मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कम ऑन, एक जगह से x का वैल्यू उठा के यहाँ रखो, y में क्यूबिक आ गया, अब y की वैल्यूज निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यूज, और जल्दी से निकलेंगी बच्चों, टाइम नहीं लगता है उसमें। मतलब क्यूबिक में एक रूट तो 0,0 दिख ही रहा है, 0,0 एक रूट आ गया मतलब कॉमन आ गया, तो बचा हुआ क्वाड्रेटिक रह गया, उसके दो रूट्स फटाफट से निकल जाएंगे और अच्छे वाले रूट्स निकलते हैं। कोई बता सकता है क्या इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है? 8 और -8 8,16 0,0 8,16 8,16 8, -16 and 8,16 तीन डिफरेंट एंगल्स निकालने पड़ेंगे। सब लोग एक बार के लिए वेट कर लो, सब लोग वेट कर लो, कोई भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वेट कर लो। जो एक बार बताओ मुझे, ये जो कर्व दिया हुआ है इसका ओरिजिन पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? इस कर्व नो लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, y square equal to 0 y स्क्वायर इक्वल टू 0। y स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? y इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस हो गया टेंजेंट। गाइस ओरिजिन पे इस कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब y is equal to 0 is the tangent equation of tangent on the x-axis is tangent for this. Question number 3 में सर at 0,0 इंटरसेक्शन के at 0,0 right, tangent to 2y square minus x cube is equal to 0 will be what? बच्चों tell me, y is equal to 0, that is x axis. Say yes or no. yes sir और बच्चों what about this? At 0,0 y axis tangent to y square minus 32x is equal to 0. What is it? Can anyone tell me? 32x is equal to 0. X is equal to 0 means y axis. y axis Y axis. अच्छा, what is the angle at origin? 90 degrees 90 degrees. Question done. Theta angle at origin. Angle at 0,
तो 8,16 क्यों नहीं किया हमने? मैं कर रहा हूँ ना, रुको ना। Okay. अच्छा ये एंगल तो आ गया। हाँ। There are 3 different answers no for this question. वो पूछ रहा है find the angle between the two curves. So one answer is pi by 2 at origin. Now we have to find out the angle at 8,16. बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा था फर्स्ट डे, राइट, वो सिर्फ ओरिजिन पे टेंजेंट के लिए देखा था ना। क्या बोला था याद करो, f of x, y equal to 0। इसमें अगर ओरिजिन पे मुझे टेंजेंट चाहिए तो लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 डाल दो, या फिर तुम चाहो तो dy by dx निकाल के 0,0 डाल के और एंगल निकाल दो। तो दैट डिपेंड्स, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंजेस, बराबर। लेकिन बच्चों कोई पॉइंट 8,16 और 8,-16 उस पे तो प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा ना। क्या प्रोसेस में जाना पड़ेगा बताओ? थीटा निकालना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करके। हाँ, सब्स्टिट्यूट करके निकालना ही पड़ेगा। उसमें लेट मत करो ऐसे, मतलब टाइम पास मत करो, इसमें फटाफट से tan थीटा निकाल दो। कोई मुझे बताएगा किसी ने निकाला है ये 2 पॉइंट? 5/4 आ रहा है। नहीं, 5/4 नहीं आता। नहीं आ रहा। tan inverse half आएगा। tan इनवर्स हाफ आता है, दोनों में tan इनवर्स हाफ आता है। मॉड जब लगाएंगे तो दोनों में tan इनवर्स हाफ ही आता है। For these two curves, theta is equal to tan inverse half। बच्चों अब ये कैलकुलेट करके पूछोगे क्या तुम लोग? बताओ। इसका dy by dx 8,16 डाल दो, इसका dy by dx 8,16 डाल दो, राइट, और फॉर्मूला लगा दो tan theta is equal to this, you will get theta is equal to tan inverse half। that's it। बच्चों सेकंड में भी सेम ही होने वाला है, सेकंड में भी सेम ही आने वाला है। इज इट ओके टू एवरीवन? यस। किसी बच्चों को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। सो dy by dx का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो ये सब नहीं करना पड़ता है। नहीं, मुझे वो कंटेंट रिवाइज करना था। कौन सा कंटेंट? ओरिजिन के लिए वो कंटेंट रिवाइज करना था कि लोएस्ट डिग्री टर्म 0 Lowest रखें। degree term। अभी आएगा नंबर, वेदांत रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 7 के लिए जगह नहीं है, राइट, मैं लिखने वाला हूं। सर एक बार चैट बॉक्स चेक कीजिए। हाँ चलो सही है मैंने किया। हाँ बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 कितने स्टूडेंट्स को हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर द थिंग्स व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस टाइम। सर फोर्थ वाला स्कैम है बस, कुछ हाँ। स्कैम है हाँ बस। सर। थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है हाँ लेकिन है नहीं। मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कितना गंदा क्वेश्चन पूछ वही लिया है। वही किया स्टार्ट में, फिर रियलाइज हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट और पता नहीं क्या हाँ। क्या सोच रहे थे यार, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ग्राफ गंदा सा बनाने कुछ बैठ डाल गया। सकते हैं। ये भी ऐसा ही लगता है लेकिन ये भी इजी है। बच्चे तुम्हें पता है मॉड sin x प्लस मॉड cos x का रेंज 1 से √2 1 से √2 होता है ना? हाँ। याद हाँ, करो sure। कैसे किया था? परफेक्ट स्क्वायर बना करके कुछ किया था। ओ, मॉड sin स्क्वायर x करके रूट ले लिया हाँ था। शिट। हाँ सर, प्लस हाँ मॉड सर। cos x बिलोंग्स टू। बच्चों ये तो जो है ना मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग को ग्रुप पे ही डिस्कस करना चाहिए कि सर ने ये रेंज लिखी है, क्योंकि ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। मॉड sin x प्लस मॉड cos x इज बिलोंगिंग टू 1, √2। बच्चों 1, √2 में 1 और √2 दोनों शामिल है, रिमेंबर, राइट। नाउ टेल मी 1, √2 का बॉक्स क्या आएगा? 1 नहीं आएगा ना, मतलब you have to find out the angle between, this is question number 3, no 4, sorry, angle between what? Y is equal to 1 and x square plus y square equal to 5। बच्चों मतलब बच्चों √5 इसका रेडियस हो गया, तो ये तो एंगल निकाल ही सकते हो यार। dy by dx से निकालना है। हाँ वो डिवाइड बाय x से निकालना, क्या है शर्म, क्या है इसमें? आराम से सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। ये दो एंगल्स निकलेंगे ना बच्चों, एक ऑब्ट्यूज वाला निकलेगा, देखो ये वाला, एक ही एक्यूट वाला निकल जाएगा, पर दोनों ही एंगल एक्यूट हम तो मॉड लगाते हैं ना बच्चों, हाँ राइट। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलता है। वो एग्जाम्स में अगर मोर देन वन ऑप्शन आएगा ना, तो एक थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा, इट्स ऑब्वियस एक्चुअली इफ द एंगल इज नॉट 90, तो दो एंगल्स हमेशा ही पॉसिबल होंगे ना बच्चों। ये एंगल निकल रहा है और सिमेट्री में ये एंगल निकलेगा तो एक्यूट आ ही जाएगा, राइट। क्या बच्चों ये वाला पॉइंट पता लगा लोगे ना? ये वाला पॉइंट y इक्वल टू 1 डालेंगे तो x आ जाएगा +-2, ये आएगा ना, x इक्वल टू +-2। हाँ पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 2, 1,
ये पॉइंट हो जाएगा -2, और जो पॉइंट पता है, कर्व पता है, तो बताओ इक्वेशन आ जाएगा, ये सॉरी एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाए। क्या एंगल आ रहा है? वैसे किसी ने निकाला है ना, बहुत सारे बच्चों ने निकाला है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? 2 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसे इधर उधर छोटे मोटे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं इस टाइप के, ठीक है? इस टाइप के तो खैर मिल ही जाते हैं। पता है ना, मॉड x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाते हो ना बच्चों, बनाया ना? x स्क्वायर माइनस 1 भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, इसका मॉड लेना है तो हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट अप्रोक्स कर लेना, या फिर इन दोनों को इक्वेट करके भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। दैट्स लॉन्ग। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सिखाना है, ध्यान दो। मतलब मैं इस क्वेश्चन को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी सॉल्व कर लूंगा, लेकिन वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे कि मानो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलता इस जगह में, तब क्या करते हैं? सब बच्चे ध्यान दो। पहले एक काम करो, इसका फोटो ले लो एक बार। रुको तो ये तो डायरेक्टर सर्कल है ना, ऐसा कुछ? हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक मिनट रुको प्लीज। हाँ, अभी फोटो ले लो इसका। ओके, ले लिया सर। ले लिया ना? तो जो हाँ, ये सर। वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में वैसे ही चला गया। अब मेरा ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन इनफैक्ट मुझे कराना ही था शुरू में। फर्स्ट क्वेश्चन ये लेने वाला था, मैंने सोचा यार पहले प्रैक्टिस तो करा एक बार। अच्छा, इसका tan थीटा मैंने निकाला, इसका dy by dx कितना आएगा बताओ? 6 का पहले वाले का c1 dy by dx फॉर c1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ही नहीं मैंने, सीधा c1 का dy by dx कितना आ रहा है? डायरेक्ट बोलो जरा फटाफट से। 2x माइनस, अरे बाबा 2x माइनस 2y dy by dx, तो x by y आ जाएगा ना हाँ। बच्चों? दिस इज x by y, राइट? अच्छा, सेकंड वाले का भी जरा फटाफट से बता दो। माइनस x by y, dy by dx for c2 is nothing but minus x by y। ठीक है ना? ये तो सब लोग को ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? सिंपल डिफरेंशिएट ही करना है। अब बच्चों, विदाउट फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट एक चांस तो लेते ही है ना कर्व में, क्या दिक्कत है? tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा is equal to m1 minus m2। this is nothing but m1, no? m1 and this is m2, √3। राइट? हाँ, ठीक है बच्चों, ध्यान दो इसको। ये आएगा x by y m1 माइनस m2, मतलब प्लस 2x by y लिख दूं क्या डायरेक्ट? m1 माइनस m2 मॉड में है ना, तो माइनस मैंने गायब कर दिया, डिवाइडेड बाय अच्छा 1 प्लस m1 m2 1 माइनस x स्क्वायर बाय y स्क्वायर। ये आ गया ना tan थीटा बच्चों, क्या बोलते हो? हाँ हाँ। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा कितना आ रहा है? tan थीटा आ रहा है 2xy डिवाइडेड y बाय स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और 2xy, ध्यान से देखो। कैन आई राइट 2xy is nothing but under root x square minus y square, x square plus y square whole square minus x square minus y square whole square। Can I write it like this? Yeah. Okay. बराबर ना? अच्छा बच्चों, ये आ कितना गया एक्चुअली? x square plus y square whole square कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना 2a square, नो? माइनस x square minus y square कितना दिया हुआ है? a square which is nothing but a। बच्चों बराबर है? 2xy का वैल्यू आ गया, x square minus y square भी आ गया ना? सर ये रेस टू 4 नहीं आएगा रूट के अंदर? हाँ यार, सॉरी। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? सर 2 का 4 हो जाएगा ना? अभी 4 होगा √2a होल स्क्वायर है ना यार? सर। उसका भी स्क्वायर किया ना? √2a तो तो 4 रेस टू 4 आ जाएगा ना? हाँ, ये आएगा ना यार? हाँ बराबर है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? ये तो कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी हो गया यार, मैं तो कुछ सिखाने के लिए 2a स्क्वायर का स्क्वायर किया ना? 8 टाइम्स आएगा। 2a स्क्वायर है तो 4a रेज़ टू 4 हो जाएगा ना सर? 2a फोर ही होगा। 4a 4
2a raised to 4 की जगह 4 हाँ नहीं 4a raised to 4 होगा। 4a raised to हाँ 4 आएगा ना 4 अच्छा ऐसा है क्या, ये 4 raised to power हाँ ये 4 होगा। हाँ रूट 3 है उसका, ये आएगा क्या? हाँ सर हाँ आएगा ना हाँ, रूट सर। 3/2 x y रूट 3/2 ठीक है, न्यूमरेटर कितना आ गया? रूट 3 है होल स्क्वायर, रूट 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर का वैल्यू और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू पता है ना बच्चों? हाँ कितना है? माइनस इसको डालेंगे उधर। माइनस a स्क्वायर मॉड में डालेंगे। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट ही आ गया। tan थीटा इक्वल टू रूट 3 मतलब थीटा कितना आ गया बच्चों? अब आई थिंक आइसोगोनल हो गया ना। अगर इसके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट एक से ज्यादा है या नहीं भी है और उसने आइसोगोनल पूछा तो आइसोगोनल तो होएगा ही होएगा एक बार ना। इट विल इंटरसेक्ट। भाई एक बार बताओ, तुम्हारा tan थीटा xy के टर्म्स में ये निकला और इसका आंसर जो आ रहा है वो xy से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कोई भी डालो, इसका आंसर तो हमेशा रूट 3 रहेगा ना बच्चों। क्या बोलते हो? मान लो बच्चों हाँ, यहाँ पे हाँ। रूट 3 टाइम्स एक्स एंड वाई में कुछ बचा ही रहता जो एलिमिनेट होता ही, यानी एक्स और वाई जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे एंगल भी चेंज होगा ना बच्चों, यस सर राइट? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा इधर पे। इसका मतलब ये कर्व जितने भी जगह इंटरसेक्ट करता है वो एंगल हमेशा π/3 रहने वाला है, यानी ये वाले दोनों कर्व्स जो रहेंगे दे आर आइसोगोनल कर्व्स। बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ सर राइट? अब जरा ध्यान दो एक चीज पे कि ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें इंटरसेक्शन पॉइंट डिफिकल्ट होएगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा एक्चुअली, राइट? अगर ऐसे क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल रहा है तो तुम इस स्टेज पे हमेशा पहुंचोगे ना, यहाँ पे कोई रिलेशन आएगा ना। इस रिलेशन को अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैनिपुलेट किया, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई आ गया। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई आता ही नहीं तो आइसोगोनल या ऑर्थोगोनल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं ना बच्चों। सर एक बार Yes, रिपीट sir. करोगे ये मैं स्टेट? बोलता हूँ कि तुम्हारा tan थीटा जो यहाँ आ रहा है, ध्यान से सुनो, tan थीटा यहाँ जो आ रहा है वो tan थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मैंने कुछ एक्स एंड वाई की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट नहीं करी ना पूरे यहाँ से यहाँ तक वाले ना हाँ नहीं करी राइट, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई हो गया ना। तो इसके जितने भी हाँ। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे एंगल हमेशा कितना बनेगा? π/3 बनेगा ना। हाँ दैट मींस द कर्व्स आर आइसोगोनल। हाँ If angle of intersection at all the points are same, what does this imply? Curves are isogonal curves. और बच्चों यही फंसोगे तुम और किधर नहीं फंसने वाले हो। मतलब एंगल बिटवीन द कर्व्स में अगर तुम कहीं ट्रैप होने वाले हो तो ऐसे ही क्वेश्चन में ट्रैप होने वाले हो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तुम्हारे लिए एक टेंशन बनेगा, और ऐसे तुम जाओगे ना तो मैनिपुलेशन कहीं टफ चला जाएगा, हो सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मिलेंगे तो सर ऐसा कोई केस हो सकता है कि इसके अंदर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है, मतलब होगा ना, tan ऐसा थीटा में आ होगा। रहा है बट लेकिन ऐसा- उसके बाद भी आइसोगोनल है, समझ नहीं रहा, आइसोगोनल है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई सर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जल्दी आ जाता है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल आ जाता है। मैंने वो चांस में लिया, मतलब मैंने इसी तरह से समझाना था, मेरे को कोई एग्जांपल सेट नहीं हो रहा था अभी, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को उस पॉइंट ऑफ व्यू में सिखा दिया, दैट्स इट। अच्छा मैं बोलता हूँ कि एक बार बताओ, तुम ये यहाँ तक पहुंचे क्योंकि तुम्हें एक रिलेशन इस तरह का मिल गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन हो, बट कि ज्यादातर केसेस में तो एक बात बताओ, तुमने एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 ये 3 एग्जांपल्स किए हैं बराबर, उनमें एक क्वेश्चन तो ऐसा था ना जिसमें 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। हाँ 0,0 और 8,16 पे एंगल तो डिफरेंट आ रहा था ना बच्चों। एंगल डिफरेंट एक y² = 32x वाला क्वेश्चन देखो ना, बिना चेक किए थोड़ी ना पता चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 0,0 पे एंगल 90 आ रहा था और 8,16 पे एंगल कितना आ रहा था, कुछ tan इनवर्स 2 आ रहा था बराबर ना। एक क्वेश्चन किया है ना, थर्ड फोर्थ वाला कौन सा? हाँ तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ कि उस कंडीशन में tan थीटा जो आता है वो x और y के टर्म्स में आता ना इधर में। हाँ सर तभी तो 0,0 डालने पे डिफरेंट आंसर और 8,16 डालने पे डिफरेंट आंसर आएगा ना, यानी वहां एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है अगर तुम इस मेथड से ही जाओ तो, बिना इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले जाओ तो, बराबर है।
Yes, sir. दिस इज ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। अच्छा एक बार बताओ, इन सारे क्वेश्चंस में एग्जैक्टली तुमने किया क्या है? जस्ट फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट? पहला कर्व डिफरेंशिएट, दूसरा कर्व डिफरेंशिएट और tan थीटा इक्वल टू m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1। अब जब तुम वो लेवल 1 2 3 करोगे ना, तो उसमें 4 5 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप बोलोगे यार ये 7 8 क्वेश्चन दिए फालतू में, मेरे को नहीं करना है, क्योंकि सब में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो और फॉर्मूला लगाओ, एंगल आ ही जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? मैनिपुलेशन में दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना जल्दी से तुम लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 is also 2 more question we will do on the same content actually. हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन a1 x square plus b1 y square, a1 x square plus b1 y square is equal to 1 and a2 x square plus b2 y square is equal to 1 are orthogonal. Prove that वन बाई a2 माइनस वन बाई a1 किया है ना बच्चों ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट का क्वेश्चन है। वन बाई a2 माइनस वन बाई a1 अब इज इक्वल टू वन बाई b2 माइनस वन बाई b। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत गेट रेडी, तेरा टर्न आने वाला है बेटा। इंटरनेट संभाल के रख। चलिए सर हम मेरा लोग सॉल्व नेट काम करके नहीं आप कर कर रहा आज। आज मेरा नेट काम नहीं कर रहा है सर, मेरे को आवाज नहीं आ रही। हाँ चलिए हम लोग सॉल्व करके आप कर रहे हो। हाँ, ये आप ही लोगों को करना है। These two curves are orthogonal than this condition. ये किया हुआ तुम्हारा है, तुम्हारी बुकलेट का क्वेश्चन है। Done. Okay. हो जाएगा, प्लीज आप ऊपर कर दो। अरे m1 m2 इक्वल टू -1 जब रखते हो तो x और y में एक रिलेशन आता है ना। अब तुम्हें x और y में जो रिलेशन आया है, उस रिलेशन में से x और y उड़ाना है। तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये x1 y1 और ये x1 y1 दोनों का सेम ही पॉइंट आएगा ना। उसको यूटिलाइज करो, मतलब ओरिजिनल दो इक्वेशंस को हमेशा यूटिलाइज करते थे ना क्वेश्चन में पहले हम लोग। याद करो टाइप 1 टाइप 2 में यही करते थे। हमारा यूनिट टेस्ट कब तक है अभी? फ्राइडे। फ्राइडे।
हाँ वही है, कॉन्फोकल वाला ही पार्ट है इसमें। बट इसको हम लोग को तो ऑर्डिनरी जो डेफिनेशन किया उससे ही हम लोग कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। 12 स्टूडेंट्स ऑफ दैट। सेकंड टर्म में माइनस आएगा। कुछ नहीं आ रहा तो यही करेंगे ना, और क्या करेंगे, लिखते जाएंगे कुछ ना कुछ, बस यहाँ जाके फंस जाएंगे। लेकिन आप याद करो, मैंने बताया था आप लोग को लेक्चर 1 में ये चीजें बहुत सारी डिस्कस हुई थी, मतलब लेक्चर 1 ऑफिशियल लेक्चर 1 I'm talking about, राइट? याद करो मैंने बोला था कि whenever two curves meet each other or some tangent is drawn to x1 y1 point, मतलब दोनों पॉइंट्स का ये समझो, सॉरी ये पॉइंट है, अगर मैं बोलूं कि ये इस पॉइंट पे ये कर्व ऑर्थोगोनल है, तो बच्चों x1 y1 पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट तो ये आता ही है ना, आता ही है ना। यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 y1 यहाँ रखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम 1 and 2, a1 minus a2 upon b2 minus b1 a1 minus a2 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस b1, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ सर, b1 b1 minus minus b2 b2 y square। y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? यस हाँ सर। अभी बोलना मत मुझे, इसके आगे भी सॉल्व करके दो, पता है ना क्या करना है? कर देंगे। ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, हाँ डन, बराबर है। यस सर। और जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना धीरे धीरे चीजें उड़ती चली जाएंगी। इज देयर एनीवन हैविंग डाउट ओवर हियर? अभी देखो x1 y1 कोई भी x1 y1 होगा उसके लिए रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा, ये तुम लोगों ने पहले किया है एक्चुअली, आई हैव जस्ट रिपीटेड। वेदांत कैन यू हियर मी? He'll say no sir. क्या सर? नहीं, नॉट रेडी। क्या पूछ दो। अरे क्या है, चैलेंज तो लेना ही, उसमें क्या है? हाँ सर पूछो। ठीक है ना? हाँ बच्चों सब लोग ध्यान दो वेदांत की गलती पे, ठीक है? सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब डिपेंड करता है तो कितना फास्ट सोचता है, उतनी फास्ट गलती होगी। सो y raised to power 4 plus x cube y plus 3x minus 4y equal to 0 is one curve. Without other curve, y raised to power 4 plus y cube x plus 4x plus 3y equal to 0. Angle of intersection at origin.
विदाउट। हाँ सर, एक मिनट। 90 डिग्री। देखो मेरा कॉन्फिडेंस फेल हो गया इस बार, राइट। मुझे ये दिख रहा है इसका ओरिजिन पे टेंजेंट जो बनेगा 3x - 4y = 0 बनेगा, इसका 4x + 3y = 0 बनेगा। हाँ सर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल, हाँ बोलो। अच्छा है सर, अच्छा है। गुड गुड गुड, राइट। गाइस ये बताओ, ये वर्ड्स से तुम कितना फेमिलियर हो? ये वाले वर्ड, ये किया हुआ है तुम्हारा, बस रिपीट करो। मैं ये टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज ए बी, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज सी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज डी। सबटेंजेंट। सुना है क्या? ये सारे नाम किए हैं क्या? दिस इज द हाँ, थर्ड सर। टॉपिक। यस सर। मुझे याद आ रहा है क्या, ये AB को हम लोग क्या बोलते थे? AB को, लेंथ AB को सबटेंजेंट। नो, अच्छा नहीं टेंजेंट। BD को सबटेंजेंट। AB इज टेंजेंट। तो जो टेंजेंट मींस AB तो लेंथ हो गई ना, तो यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट और लिख के देगा जरूरी नहीं है। AB मींस लेंथ एंड AB को टेंजेंट बोल रहा है, मतलब एक लाइन सेगमेंट को टेंजेंट बोल रहा है ना बच्चों, राइट। तो टेंजेंट का लेंथ हो गया, जरूरी नहीं कि लिखा हुआ है वो लेंथ। AB पूछेगा इसका मतलब टेंजेंट का ही लेंथ पूछ रहा है, ये मान के चलो। तो मैं यहाँ सिर्फ टेंजेंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब तुम समझ जाना, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना। ओके बच्चों, अगर कर्व दिया जाए, कर्व दे दिया हो तुमको, y = fx कर्व दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये थीटा पता लग गया कि नहीं लग गया? पता हाँ कैसे? हाइट और बेस की लेंथ सर पता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाइट और बेस लेके कर सकते हैं, या फिर इसका dy/dx निकाल लो, x1 y1 डाल दो तो tan थीटा आ गया ना। अरे बाबा, इसका dy/dx एट x1 y1 तो मतलब tan थीटा आ गया ना, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया ना। स्लोप पता है तो मतलब थीटा पता लग जाएगा ना बच्चों। हाँ सर। तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि अगर कोई कर्व दिया हुआ है, आई रिपीट, अगर कोई कर्व दिया हुआ है, तो कर्व दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ है, तो थीटा तो हमेशा पता ही है ना। थीटा पता है, ये थीटा पता है, और ये पॉइंट पता है y1, ये पॉइंट पता है y1, ये लेंथ मतलब ये वाली डिस्टेंस पता है, परपेंडिकुलर लेंथ। तो टेंजेंट का लेंथ निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों? बताओ। y1 cosec थीटा, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ये वाला ट्रायंगल, सही है? सुनो, यस सर। हाँ सर। cosec थीटा पता है, सॉरी cosec थीटा नहीं पता, tan थीटा पता है, तो cosec थीटा पता लग जाएगा ना बच्चों। tan थीटा तो पता ही है ना, यहाँ से tan थीटा मतलब dy/dx। अरे बाबा, दिस इज नथिंग बट y1 √1 plus cot square theta, say yes or no? And this is nothing but y1 into under root √ 1 plus 1 upon dy/dx होल स्क्वायर, ये होगा ना बच्चों? बस सर। dy/dx कहाँ निकालना है पता है ना? x1 y1 पे निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यस सर। ये किया है कि नहीं किया है तुम लोगों ने पहले? अरे हाँ या ना में कोई एक तो जवाब होगा ना। सर नहीं किया लग रहा है। ठीक है। अभी समझ में आया नहीं आया? ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी को? लेंथ ऑफ टेंजेंट, नहीं लेंथ इसमें ऑफ नहीं टेंजेंट। अच्छा ये जो लेंथ है ना, ये AC, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। बाद में लिखेंगे इसको, रटना नहीं है इन सबको, बस ये समझना है कि क्या है। इसको रट तो सकते नहीं हम। if हमेशा बोलो। बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट इज x एक्सिस से लेकर उधर तक में। नहीं, ये डेफिनेशन इस तरह से नहीं दी जा सकती। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब सीधा सीधा अगर कर्व ये दिया हुआ है, तो किसी भी y = fx जो कर्व होता है उसका एक्सिस x एक्सिस होता है बच्चों। ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट y = मैं इरेज करूंगा इसको, f of x, तो इसका एक्सिस ये x एक्सिस होता है। तो किसी टेंजेंट का उसके एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आता है ना, वो प्रोजेक्शन सब टेंजेंट होता है, और उसका एक्सिस के साथ मतलब उसके एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन आता है
वो टेंजेंट का लेंथ होता है, ये टेंजेंट का लेंथ और उसका अच्छा तो आप बोल प्रोजेक्शन रहे जो हो कि आएगा, वो सब टेंजेंट का आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू f5 रहता तो तो y एक्सिस हो y जाता, एक्सिस पर, हाँ ओके सर ओके ठीक है। हाँ सर लेकिन उसकी टेंशन मत लो, मतलब वो सब चीजें है नहीं अपने सिलेबस में, इतना लंबा चौड़ा झगड़ा करना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, पूछा भी नहीं गया है कभी ओके तक, सर और अपने बुकलेट में भी किधर या किसी भी जगह पे कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं मतलब इसमें। इजी हो गया ओके लेंथ ऑफ नॉर्मल। और बच्चों ये बीडी क्या हो गया, बीडी सब टेंजेंट, और डीसी क्या हो गया बच्चों, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल का लेंथ बता सकते हो, ये एंगल थीटा, ये 90, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो गया ना, ये वाला Yes, एंगल। sir. y sec तो बच्चों ये कितना हो गया, ये लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, Y1 y1 sec sec theta. थीटा। इसको 10 में चेंज करते रहना ना, जैसे ये किया वैसा कर लोगे ना बच्चों, बराबर ना। अच्छा ये बताओ ये कितना होगा बच्चों, ये वाला लेंथ डीसी थीटा, ये थीटा और ये y1, Y1 tan theta. y1 10, और बच्चों ये क्या होगा, ये y1 cot theta. y1 cot थीटा। दैट्स इट गाइस। एग्जाम्स में ये रिजल्ट कौन याद रखेगा, सब टेंजेंट सब नॉर्मल पे कभी 5 से 10 साल में कोई एक क्वेश्चन कभी पूछा गया होगा, अभी 10 साल में तो एक भी नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। ये ट्रिपल छोड़ दो, मतलब मेन जेई मेंस छोड़ दो, पर एडवांस में तो कोई एक क्वेश्चन भी नहीं है। अब उसके लिए हम इस पूरे फॉर्मूलाज को क्यों याद करेंगे, सिर्फ डेफिनेशंस याद करेंगे ना, ये टेंजेंट का लेंथ, ये सब टेंजेंट, ये नॉर्मल का लेंथ, ये सब नॉर्मल का लेंथ। अगर कर्व दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ है, राइट, तो थीटा हमेशा निकल जाएगा। तो कर्व बना करके ये थीटा निकाल लो, बनाना भी जरूरी नहीं है, जस्ट थीटा निकाल लो, dy by dx at x1 y1, राइट, तुम्हें tan थीटा पता लग गया। बस हमेशा कर्व बना के ये सारी लेंथ्स जो है इस फॉर्म में एक बार निकाल, tan थीटा पता लग गया तो बाकी सब मतलब sec थीटा और cot थीटा और cosec थीटा सब पता लग जाए। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं इसमें, वो बस थोड़ा सा कभी कभी घुमा देता है। एक आधा क्वेश्चन में जैसे तुम्हें मिलेगा तो एक आधा क्वेश्चन में तुम घूम जाओगे, जैसे पिछली बार अभी मैंने वेदांत को एक चैलेंज किया और उसने फटाफट से एक आंसर दे दिया, राइट। अब दोबारा करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो चांस तो लेना ही चाहिए, उसमें क्या है, पहली बार मैं फेल हुआ, दूसरी बार वेदांत। वेदांत आर यू रेडी? यार सर ठीक है, ये हो गया, हाँ ये हो गया, डाउट नहीं, था। ये हाँ, फिगर में ये हो इरेज नहीं गया। कर रहा हूँ, ये कर दिया ना तूने फटाफट से, कॉन्फिडेंस आएगा ना हाँ इससे। सर। तो वो सब ध्यान देना हाँ ना। सिली डाउट सर मैं हाँ पूछ बोलो रहा हूँ। बोलो, वो है सर हमने y1 into √1 plus cot square थीटा में मॉड cosec थीटा का मॉड इसलिए इग्नोर किया ना क्योंकि एक्यूट एंगल है। हाँ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यू आर राइट, ओके गुड सर। गुड ओके क्वेश्चन। सर। और बच्चों सारे क्वेश्चंस में मॉड लगा ही देना। ये जो यहाँ लिखा है ना बच्चों, देखो अब आप बोलोगे कि सर पहला स्टेटमेंट आपका कि 10 साल में कोई क्वेश्चन नहीं, अब दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट होता है किधर में, डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन की बुकलेट में, आई रिपीट बुकलेट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल ऐसे लिखे हुए मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हें सॉल्व करने रहेंगे। और उसमें जो वेदांत स्टेटमेंट दे रहा है ना बच्चों, वो यूटिलाइज होएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, ये AB लेंथ लिखा है, तुम्हें लगता नहीं कि इसको मॉड लगाना चाहिए यहाँ पे? अरे हाँ। बाबा लेंथ है ना, y1 और cosec थीटा दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ, दूसरा पॉजिटिव हुआ, तो लेंथ नेगेटिव थोड़ी हो सकती है बच्चों। Yes, sir. तो यहाँ मॉड लगाना चाहिए ना, बराबर से। ये बट ये ऑब्वियस नहीं था। हाँ वही। आज देखो ये मैं आई जस्ट वांटेड, आई वाज वेटिंग कि कोई बोले कि सर ये ऑब्वियस है। मैं बोलता हूँ ये जो ऑब्वियस है ना बच्चों, ये दिमाग पे रखना, देखो तुम लोग, ठीक है, कि सर ये लेंथ है तो ऑब्वियस है, यही तुम्हें मिस्टेक करवा के जाएगा। आई रिपीट, ये सारी लेंथ है बच्चों, और ये सारी लेंथ है, इसलिए इनको पॉजिटिव ही सिर्फ होना चाहिए, इनको सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो बच्चों √x² भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, वहां तो गलतियां बहुत करते हो ना तुम लोग। √x² को भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, वहां तो गलतियां बहुत करते हो ना। और वो तो ऐसा कंटेंट है जिसको तुम हजारों बार करते हो और फिर भी गलती करते हो। ये तो बच्चों अब से बहुत लंबे टाइम के बाद आएगा ये कंटेंट,
जिसको तुम लोग बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। लोकस वोकस के प्रॉब्लम जब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लेते हैं ना बच्चों, यहाँ मॉड लिखना जब भी भूलोगे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में ये गलत जाएगा तुम्हें, और एक आध बार नहीं कई बार गलत जाएगा। इसको मॉड लिखना भूलना नहीं है, राइट? ऑब्वियस है लेकिन भूलना नहीं है, लगाओ हमेशा। वेदांत यू मस्ट बी हैप्पी कि हाँ, तुमने sir. एक पॉइंट रेज किया यहाँ पे, अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं तो बच्चों, सोचा एक था बात फालतू बताओ। डाउट आया। बच्चों एक बार बताओ रुको रुको, एक बार बताओ, इस आंसर में अगर y1 नेगेटिव आया तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना? हाँ नेगेटिव हो जाएगा ना, आंसर तो नेगेटिव नहीं लिख सकते ना, इसलिए इस फॉर्मूला को अगर ऐसे ही छोड़ के आ गए एग्जाम्स में, ऐसे इस स्टाइल में छोड़ के आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी मॉड y1 आना चाहिए। हाँ, ये यहाँ आ गया तो यहाँ भी आएगा ना, मॉड y1 लिखना ही पड़ेगा ना, बराबर है? वेदांत तो कुछ पूछ रहा था? नहीं, मैं यही पूछ रहा था। अच्छा बच्चों ध्यान दो, वेदांत इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। सब लोगों को ये क्वेश्चन जिसको जब भी जैसे आएगा ना तुरंत हैंड रेज करना। मुझे सिर्फ देखना है कि कितने बच्चों को ये 10 से 20 सेकंड में आ जाता है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बच्चों आज के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। एक कर्व है y इज इक्वल टू b e रेज टू पावर x बाई 3, y इक्वल टू b e रेज टू पावर x बाई 3। ये कलर विजिबल है? नहीं ज्यादा हाँ सर है। विजिबल है। y इक्वल टू b e रेज टू पावर x बाई 3, ये कर्व है बच्चों, है ना? इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे सब नॉर्मल का लेंथ क्या होगा वेदांत? सब नॉर्मल। वेट सब टेंजेंट का लेंथ। बच्चों जिसको आंसर आता जाएगा ना वो हाथ ऊपर करते जाओ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, मैंने पूरा लिख दिया इतना, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बहुत जगह में, ऐसा नहीं है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट एनी पॉइंट। बच्चों इसका मतलब पॉइंट चेंज करते जाओ, सब टेंजेंट का लेंथ तो फिक्स ही रहेगा। एट एनी पॉइंट इज क्वेश्चन मार्क। मतलब पॉइंट पर डिपेंडेंट लेंथ नहीं रहने वाली है, ये फिक्स ही आने वाली है। आयुष को हुआ है। अच्छा सब टेंजेंट का लेंथ, हाँ राइट है। नो अमर रॉन्ग, प्रेक्षा को हुआ, आर्यन को हुआ। बोल आंसर बोलूं? हाँ आंसर बोल सकता है ना, तेरा ही वेट है बाकी। 3 देखो करेक्ट है सर। इसमें ये 7 लोगों का हाथ ऊपर कैसे है मुझे समझ में नहीं आया। 10 13 15 16 गाइस, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हुआ? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या निकलेगा इधर से? अरे ये y तो upon एक what? मिस्टेक किया। y upon divide dy by dx। तो b कैंसिल नहीं किया अमर ने, Scan था सर। b कैंसिल नहीं किया एक्चुअली। हाँ y upon dy by dx। तो बच्चों y upon dy by dx कितना आ गया? y कितना है? y कितना है? b e raised to power x by 3 है ना। अरे भाई एनी पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत, पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं है ना, किसी भी x पे सेम ही आएगा ना। y ये आ गया बच्चों, dy by dx कितना आएगा इसका? y by 3 हो जाएगा। That's it, क्वेश्चन खत्म। आंसर इज 3। आई डोंट नो कितने लोग हुआ वैसे? 31 सर मुझे एक डाउट है, सर मुझे एक डाउट है। गो अहेड। सर e रेज टू x बाई 3 का ग्राफ कभी कट ही नहीं करेगा x एक्सिस को। मैंने कब कहा कट करेगा? कट करना भी नहीं है उसको। तो b into e रेज टू x बाई 3 भी तो नहीं कट करेगा। अरे बाबा ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो गया, तू जबरदस्ती परेशान हो रहा है इसमें। इस तरह का कोई भी कर्व है, मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अरे ये हुआ ना, ये लेंथ सब टेंजेंट हुआ ना। अब ये लेंथ इस कर्व के लिए, ये लेंथ इस कर्व के लिए हमेशा 3 रहेगी। ये पॉइंट कितना भी तू कहीं भी ले जा, ये लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, अंडरस्टूड क्या? ओके हाँ सर। अरे समय कंफ्यूज हो गया एक सेकंड के लिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? वो है जैसे मैथमेटिकली तो आ गया, लेकिन मेरे को अब आप इससे बोल रहे हो ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली राइज होगा ना। अरे पता है क्या चक्कर क्या है इसमें? ये एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ ना, ये लेंथ फिक्स हो गई ना यहाँ पे इस कर्व के लिए।
अरे भाई ये कहीं भी ले जा, टेंजेंट बनेगा तो उस पर परपेंडिकुलर भी बनेगा ना, तो ये लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो आ रही है ना कांस्टेंट, क्या कर सकते हैं। हाँ, अरे हाँ, ऐसा 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 ऐसा, हाँ इस पॉइंट को तू टेंडिंग टुवर्ड्स किधर भी ले जा, किधर भी, राइट। साथ में वो भी खिसकेगा ही ऑब्वियसली। टेंजेंट इधर आएगा तो उसमें परपेंडिकुलर भी आएगा ना, ये लेंथ कभी चेंज नहीं होने वाली। हाँ और प्रूव हुआ ना यहाँ से भाई, इट इज हाँ भाई, वो इंडिपेंडेंट तो ऑफ एक्स। मैथमेटिकली ठीक था, आपने ग्राफ बनाया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है सर। नहीं, ग्राफ भी बनाएगा तब भी ये लेंथ कांस्टेंट ही आने वाला है। गॉट इट। हाँ सर, यस सर। अच्छा, ये लेक्चर सिर्फ देख के आ जाओ। ओ